Hello everyone, I am Ruchi Agrawal, final year MBBS student from GMC Gondia. Today I'm going to explain you about neonatal jaundice. It's a very common disorder among neonates and hence it's a very important topic for us to understand. So before we dive into neonatal jaundice, I would like to tell you about bilirubin metabolism. So bilirubin is basically made from heme. Heme oxygenase act on heme and converts it into biliverdin, and then biliverdin reductase acts on it to convert into bilirubin. तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बनाता है 35 मिलीग्राम ऑफ बिलीरुबिन. ठीक है, बट न्यूबॉर्न्स में ये प्रोडक्शन 2 to 3 टाइम्स ज्यादा होता है. क्यों? क्योंकि उनमें आरबीसी का मास ज्यादा है. आरबीसी का मास ज्यादा है, हीमोग्लोबिन ज्यादा रहेगा, बिलीरुबिन ज्यादा फॉर्म होगा और इनमें शॉर्ट आरबीसी का लाइफ स्पैन रहता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 70 to 90 days. ओके, तो ये बिलीरुबिन जो यहाँ पे बनता है, विच इज इट इज अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन. अब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज बेसिकली लिपिड सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, एंड अगर इसका लेवल बढ़ गया तो इट बिकम्स टॉक्सिक टू सीएनएस. तो इसके लिए इट गोज एंड बाइंड्स टू अल्ब्यूमिन एंड ये वहां से जाता है लीवर को फॉर कॉन्जुगेशन. बट देयर इज अ क्लिनिकल कोरिलेशन हियर. Albumin में competitive binding होती है between bilirubin and free fatty acids and drugs such as cephalosporin and other drugs. So whenever the level of free fatty acids and such compounds are more, then the albumin binds to those compounds and the bilirubin, unconjugated bilirubin, moves freely and goes and deposits into the tissues, which becomes toxic or it leads to complications. So now our unconjugated bilirubin has basically get bind to अल्ब्यूमिन और लीवर के लिए चले गया वो कॉन्जुगेशन के लिए. कॉन्जुगेशन लिवर में जाके इट गोज एंड बाइंड्स टू ligandin Y, and then there is an important enzyme known as UDP glucuronil transferase which converts the unconjugated bilirubin to conjugated bilirubin. The conjugated bilirubin further goes into the small intestine through bile and फिर वहां पे it is acted upon by various bacteria and it goes and is excreted into stools and in urine. or else most of the bilirubin is excreted through this mechanism, या फिर उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है टू अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, या फिर वो रीएब्सॉर्ब हो जाता है बाय एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन. ओके, सो अब किसी भी नियोनेट को क्लिनिकल जॉन्डिस है, हाउ विल बी डायग्नोज? सो बेसिकली first we'll look in icterus for yellowish discoloration, we'll look in the face. बट क्या हम क्लिनिकली जज कर सकते हैं कि जॉन्डिस कितना सीवियर है? यस, it's by Kramer's zone. So if it's present in the first area as shown here, it's approximately 5. Here it's 2, it's 3, 4 and इसके ऐसा है. बट वी हैव टू रिमेम्बर कि अगर पाम्स और सोल्स में अगर हमें येलोइश डिस्कलरेशन मिल रहा है, दैट मीन्स दैट इट्स वेरी सीवियर जॉन्डिस एंड इट शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली. Other than this, jaundice can be detected by serum bilirubin, very obvious. And a new device is transcutaneous bilirubinometer. So as shown in the figure, this device is basically placed on the sternum of the baby and यहाँ से हम उसका serum bilirubin calculate कर सकते हैं. So now I would like to tell you about the types of neonatal jaundice. Basically दो types है, physiological और pathological. उसके अलावा other types में breast milk jaundice और breastfeeding jaundice आता है. So physiological jaundice occurs mainly due to unconjugated hyperbilirubinemia. Term baby में जब आपको day 3 पे up to 12 milligram per deciliter rise in serum bilirubin मिलेगा, we call it as physiological and it resolves in 7 days. And day 5 प्री टर्म में डे 5 को अगर आपको अप टू 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मिलता है, then it's physiological and it resolves in up to 2 weeks. Why does it resolve in 7 days and 2 weeks only? Because there are this ligandin Y and UDP glucuronil transferase. These enzymes are basically immature in term and preterm babies and it takes them 7 days and 2 weeks respectively to get matured. इसलिए it gets cured. Other than this, इसके causes हो सकते हैं more hematocrit and less RBC lifespan as we saw in the metabolism. अब उसके बाद पैथोलॉजिकल जॉन्डिस. हाउ विल वी नो कि ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है? तो अगर कोई भी जॉन्डिस आपको दिखता है या येलोइश डिस्कलरेशन दिखता है विदिन 24 आवर्स ऑफ लाइफ, देन इट इज डेफिनेटली पैथोलॉजिकल. या फिर आपको राइज मिल रहा है ऑफ मोर देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर आवर, इट्स डेफिनेटली पैथोलॉजिकल. या फिर आपका jaundice it's persisting beyond one week in term baby and 2 to 3 weeks in preterm baby, you need to go for further clinical investigation and it's a pathological jaundice. पैथोलॉजिकल जॉन्डिस दो कारण से हो सकता है, या फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज्यादा है या फिर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज्यादा है. तो लेट्स सी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज्यादा कैसे, उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं.
तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कब ज्यादा रहेगा? जब इंक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का, या फिर उसका डिक्रीज हो जाएगा कॉन्जुगेशन। तो इंक्रीज प्रोडक्शन कब होगा? जब बेबी को पॉलीसाइथेमिया होगा, वेरी ऑब्वियस। मोर इम्पॉर्टेंट कॉजेज हीमोलाइसिस। तो हीमोलाइसिस से ज्यादा आरबीसी का लाइसिस होगा, जिससे बिलिरुबिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ये मोस्टली इट्स सीन इन आरएच इनकम्पैटिबिलिटी या एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, आउट ऑफ विच एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी इज द मोस्ट कॉमन cause, but RH incompatibility is more severe cause. Other than this, there could be increased bilirubin production due to G6PD deficiency या फिर hereditary spherocytosis. इसके अलावा डिक्रीज कॉन्जुगेशन क्यों होगा? कॉन्जुगेशन के इट्स वेरी सिंपल। कॉन्जुगेशन के लिए कौन सी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थी? यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेंस, राइट? या फिर ये एंजाइम डिक्रीज है या फिर एब्सेंट है, इसलिए कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इस सिंड्रोम को एक नाम दिया गया है विच इज क्रिगलर नाजार सिंड्रोम। एंड इसके दो टाइप्स है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 1 में देयर इज एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम, एंड टाइप 2 में देयर इज डिफिशियंसी ऑफ दिस एंजाइम। सो वी ट्रीट इट बाय phenobarbital बिकॉज phenobarbital is basically an enzyme inducer. इसके अलावा देयर इज वन मोर डिसीज कॉल्ड एज गिलबर्ट्स डिसीज। इसमें बेसिकली म्यूटेशन होता है जिसके कारण देयर इज डिफिशियंसी ऑफ यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेंस, बट ये माइल्ड जॉन्डिस कॉज करता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। So there is another reason for pathological jaundice, which is conjugated hyperbilirubinemia. तो इसमें क्या होता है? बेसिकली अब कॉन्जुगेट तो हो गई है, कॉन्जुगेट हो गया है बिलिरुबिन लीवर में, बट इट्स अनेबल टू बी वी आर अनेबल टू एक्सक्रीट द बिलिरुबिन आउट। तो ये क्यों हो सकता है? या फिर कोलेस्टेसिस हो सकती है, या फिर हेपाटोसेलुलर इंजरी हो सकती है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज इज बेसिकली बिलियरी अट्रेजिया। क्लिनिकली इसमें मोर देन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर डायरेक्ट बिलिरुबिन रहता है। मोर देन इट फॉर्म्स डायरेक्ट बिलिरुबिन फॉर्म्स मोर देन 20% ऑफ टोटल बिलिरुबिन। इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू फोटोथेरेपी या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। तो आपको पहले कॉज पता लगाना पड़ेगा, उसके बाद उसको ट्रीट करना पड़ेगा। नाउ द मोस्ट डेडली complication of unconjugated hyperbilirubinemia is kernicterus. Kernicterus में क्या होता है? unconjugated bilirubin इतना बढ़ जाता है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके जाके सबसे पहले बेसल गैंग्लिया में डिपॉजिट हो जाता है ब्रेन के। इट कॉजेज न्यूरोलॉजिकल डैमेज, परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज। तो ये टर्म बेबीज में कब होगा? जब बिलिरुबिन रहेगा मोर देन 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या फिर बिलिरुबिन कम है 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, पर बेबी को सेप्सिस है, हिमोलाइसिस है, एस्फेक्सिया है, तब। ये प्रीटर्म बेबीज में कब दिखेगा? when the bilirubin is even less than 1000 ग्राम। पर प्रीटर्म में इतने कम बिलिरुबिन में क्यों दिख रहा है? क्योंकि प्रीटर्म में ब्लड ब्रेन बैरियर इज नॉट मैच्योर, इट्स प्री मैच्योर। तो इट्स वेरी इजी फॉर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन टू क्रॉस इट, राइट? पर अब हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो मेन ट्रीटमेंट मोडालिटी इज फोटोथेरेपी फॉर अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। इसमें फोटोथेरेपी में बेसिकली क्या होता है कि वो अनकॉन्जुगेटेड दैट इज वाटर इनसॉल्युबल बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देती है सॉल्युबल बिलिरुबिन में। यहाँ पे ये मशीन है फोटोथेरेपी की, इट्स प्रेजेंट इन आर एनआईसीयू ऑल्सो। तो बेसिकली इसमें दिस ग्रीन ब्लू लाइट जिसके नीचे बेबी को रखा जाता है एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30 to 45 सेंटीमीटर्स। उसके आईज और जेनाइटल्स कवर किए जाते हैं टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ रेटिना और गोनाड्स, एंड अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी उन्हें फोटोथेरेपी दी जाती है। तो बेसिकली इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? एक तो है हाइपरथर्मिया और एक है इनसेंसिबल वाटर लॉस। कहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है फोटोथेरेपी? इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस बिकॉज इट्स लीड्स टू ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। ओके, अगर फोटोथेरेपी सपोज काम नहीं कर रही है तो नेक्स्ट क्या है? एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में बेसिकली बेबी का डबल वॉल्यूम ट्रांसफ्यूज करते हैं उसमें, और बेसिकली ओ नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। अब इसके बाद आएगा ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। तो ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एंड इट प्रेजेंट्स ऑन डे 14 ऑफ लाइफ। तो ब्रेस्ट मिल्क में ये दो सब्सटेंसेस होते हैं, प्रेग्नेंटलीडायोल एंड फ्री फैटी एसिड्स। ये क्या करते हैं? ये इनिबिट करते हैं हमारी कॉन्जुगेशन करवाने वाली एंजाइम यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेंस को। और उसके साथ ब्रेस्ट मिल्क क्या करता है? जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रहता है ना, उसका कन्वर्जन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में करता है। तो इसके कारण अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाता है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस में। हाउएवर ये सिर्फ एक माइल्ड जॉन्डिस प्रोड्यूस करता है, तो इसमें कर्निकटेरस रेयर है। बट इसका ट्रीटमेंट इज लाइक वी वोंट स्टॉप द ब्रेस्ट फीडिंग, वी विल कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, द जॉन्डिस विल डिसअपियर। है ये ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, इट्स लिटरली बिकॉज द बेबी इज नॉट वेल ब्रेस्ट, this is basically because of decreased feeding of the baby. क्या होता है इसमें कि बेबी को he is not well fed,
तो उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन के कारण जो बाइल फ्लो है वो स्लगिश हो जाएगा, तो बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन नहीं होगा। उसके अलावा मोटिलिटी जो है गट की वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब गट में बहुत देर तक बिलिरुबिन रहेगा ना, तो उसका एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन हो जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट इजी है कि आप बढ़ा दो ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। सो इट्स वेरी सिंपल, राइट? So with this, we would end neonatal jaundice. It's a very simple, straightforward topic. Let's revise. सबसे पहले हमने देखा bilirubin metabolism, hemoglobin, heme, biliverdin, bilirubin, unconjugated bilirubin, which binds with albumin. Albumin लेके जाता है लीवर, लीवर में वो conjugate होता है, conjugate होके small intestine में जाता है और फिर वो stool या urine में excrete होता है. Diagnosis हमने देखे Kramer's zone, फिर हमने देखा serum bilirubin, फिर हमने देखा transcutaneous device. ओके उसके बाद टाइप्स, दो टाइप्स है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मेनली अनकॉन्जुगेटेड के कारण होता है, पैथोलॉजिकल अनकॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेटेड के कारण हो सकता है। पैथोलॉजिकल में अनकॉन्जुगेटेड के क्या कॉजेज है? इंक्रीज्ड प्रोडक्शन या फिर डिक्रीज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेटेड के क्या कॉजेज है? कोलेस्टेसिस, बिलियरी एट्रेसिया। कॉम्प्लिकेशन एक ही इंपॉर्टेंट है, कर्निकटेरस। ट्रीटमेंट है फोटोथेरेपी, वो रेजिस्टेंट है तो फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। कुछ ड्रग्स भी दिए जा सकते हैं जैसे फिनोबार्बिटन वगैरह, बट वो यूजुअली ट्रिगर आचार में ही यूज होते हैं। उसके अलावा दो और टाइप के जॉन्डिस देखे हमने, ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। दीज आर द रेफरेंसेस एंड थैंक यू।